Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So this is the second week of the TA session of the structural analysis course by Professor Amit Shah. I am Trisha Chakravarti, one of the teaching assistants of this course, and I'm a first year PhD student at the Indian Institute of Science, Bangalore. As we have discussed in the last class and the last week, there are three common types of elements in 2D plane: the truss element, the beam element, and the frame element. So we start learning structure analysis with the simplest one, the truss element. Now, what is a truss? In the practical world, the truss is a framework that supports a structure. For example, this is a Howrah bridge, that is a truss bridge. The truss supports the bridge. This is the deck of the bridge on which cars can go, and there is a curb for walking, and that this is a truss structure that holds it up. And another place where trusses are commonly used are roofs of factory sheds. Like this will be a sheeting, and these rafters run parallel, and there are the trusses holding it up. More formally, in an engineering sense, a truss is an assembly of two force members connected by nodes that creates a rigid structure. Two force member is a term that you are encountering for the first time, so there is a definition. Two force members have pins or hinge supports at both ends. They carry no load in between, so only a two force member is a member that has hinges on both ends, and the loads can be applied only on the end points at the nodes. There can be no load in between. They have only two forces acting upon them at the hinges, and most importantly, that implies that the member is only under axial loading. There can be no shear, bending, or torsion. As we know, there are four kinds of loading in the 2D plane. There are four main kinds of loading: axial, shear, bending, and torsion. So, truss members are those that are only under axial loading. So, this is how a true two force member is. That these are pins or hinges. There can be forces, any number of forces in at the ends, but they will result in a single force that is oriented along the direction of the truss member. And there are two types of axial loading: tension, that attempts to elongate the member. So if this is a truss member and the resultant forces are directed away from the body of the member, so it attempts to elongate the member, and the other is a compression that attempts to shorten the member. So here the forces on both sides are oriented in, into the truss. Now, if suppose, for example, the resultant forces are okay, we'll come to that later. About the sign conventions. Okay, this is how trusts are idealized, because a truss is a real life structure. We find that in the real world, in bridges, roofs, many places. So we have, for analysis, we have to idealize it. So, for example, look at this truss. If these are the truss members, and real world trusses will obviously be three dimensional, because we live in a three dimensional world. So here there is one truss like this, which has been idealized like this. Each member, each these rod like elements, they are not technically rods, but they are called rods because truss, another name for this, that of truss elements, are bar elements that only take axial forces. So these bars are drawn as single lines. The nodes are generally represented by a circle or a dot. And in this real world truss, there will be another of this identical structure behind, and there will be joining the this point, this node, and the node behind it. They will all be joined to give a 3D structure. But for simplification of analysis, we will first analyze only the 2D truss, then we can extend it up to the 3D truss, and use it for design of the real world truss.
These are some kinds of trusses that we encounter. So a simple truss is constructed from the basic triangular element and by connecting two more members to form an additional element. For example, this is the simplest kind of truss. There will of course have to be support reactions that we'll see later, but this is a simple truss that is one triangle. Then if you add two more members, it will form another triangle. Two more members, it will form another triangle, and so on. So these are all simple trusses. They are just made up of simple triangles. Then another kind is a compound truss that is constructed by connecting two or more simple trusses using hinge or additional members like this. See, this is a simple truss, this triangle. This outer triangle is a simple truss as well, and these are connected by additional members, and these are also truss members. All of these are truss members, and the entire structure is a compound truss. Here, this part is a simple truss, this part is a simple truss because they are all made only of triangles, and this member, this joins them, and this is a node shared by both of the trusses. So this is a compound truss made of two simple trusses. And another is a complex truss that has a polygonal structure. It is neither a simple truss nor a compound truss. When we talk of structure analysis, one of the most important things that we have to see at the very beginning is whether the structure is stable or not. Because if it is not stable, you cannot carry out analysis on that. If it is not stable, we cannot accept it at all. And in fact, in a structure that is not stable, stresses do not generate. That, for example, if you drop a phone from a height, drop anything, an object from a height, till it is unstable, that is, still it is falling, till while its motion is going on, no stress develops in it. When it hits the ground, it comes in equilibrium, and then from the reaction force of the ground, stress will generate. So there are two kinds of stability in structure analysis, external and internal. First, we look at the external stability. Here, this says that the truss or any structure for that matter must satisfy the three equations of equilibrium. What are they? In the 2D plane, the number of equations of equilibrium is three. That is the summation of forces in the x direction must be zero, summation of forces in the y direction must be zero, and summation of the moments into the plane or outside the plane that we call the z axis should be zero. And one thing to note here is that the x-axis, y-axis, and z-axis are being defined by us. We generally would draw the x-axis as a horizontal one, y-axis as a vertical one if you look into a sheet of paper. But you can orient those axes at 90 degree in any direction. You can make it 45 to the horizontal line and 135 degree to the horizontal line, and it will still work. You can apply the equations of equilibrium in any two perpendicular directions on the plane, and and one outside the plane, that is the moment equilibrium. Then, this is important, all support reactions must not be parallel, and all support reactions must not be concurrent. Here, this diagram will help you to understand this. Okay, so for three equations of equilibrium, we basically mean that there must be three support reactions. Suppose you adjust this in a way that there are three roller supports. So this roller will give a reaction in this direction, in like this will give like this, and c will give like this. So there are three reactions. You can find out three equations, and it will probably even satisfy the equilibrium in some cases. But if you put a force if you put a horizontal force like this, then you see that there is no provision in this support to take a horizontal force. So the truss will simply move in this direction, in the horizontal direction. It is unstable. So basically, if three, if yeah, if the three reactions are parallel, if the three reactions are parallel, then it is unstable in case a force comes in the direction perpendicular to that. Yes, yes. Anil, you मैम have. हिंदी में थोड़ा समझाइए ना। अच्छा अच्छा, हाँ, और कुछ डाउट है तो हैंड रेज ना करके सीधा बोल ही देना, बिकॉज आई कैंट सी द स्क्रीन व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग। ओके ओके, ओके, थैंक तो यू। ठीक है, तो बिफोर दैट इसके पहले और कोई डाउट है क्या, या मैं इधर से बोलूँ? नहीं मैम, चलेगा, समझाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, स्टेबिलिटी से समझाइए। यस। सो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी में तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना है। मैंने जो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमें पता है, दैट बेसिकली मीन्स कि तीन सपोर्ट रिएक्शन होना चाहिए। इधर इस स्ट्रक्चर में तीन सपोर्ट रिएक्शन है हमारा। इधर देर इज वन
वन फोर्स, वन रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एफ ए, इधर एक एफ बी और एफ सी आएगा, द वी विल गेट थ्री इक्वेशंस। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि तीन सपोर्ट रिएक्शन पैरेलल है। तो अगर ये जो डायरेक्शन है, तीन फोर्स ही वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, तीन रिएक्शन। सो अगर फोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर फोर्स अगर परपेंडिकुलर तो दैट डायरेक्शन आएगा, मतलब हमारा हमारा रिएक्शन इस डायरेक्शन में है और हमारा लोड आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको रोकने के लिए कोई नहीं है। देर इज नो रिएक्शन that can oppose this load applied, so the truss will move in this direction, the truss will simply move in the along the horizontal direction। उसका मतलब है वो स्टेबल नहीं है। और सिमिलरली इसका और एक केस आ सकता है दैट अगर तीन सपोर्ट रिएक्शन कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मतलब क्या, दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। सो इफ दिस आर ए, आर बी एंड आर सी सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिस पॉइंट सी पे, सी नहीं, कुछ और लिखना होगा, ई पे सपोज। सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, इधर मोमेंट इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम आ जाता है। दिस इज कॉल्ड लीनियर अनस्टेबिलिटी, इसको रोटेशनल अनस्टेबिलिटी बोलता है। सो इफ अ मोमेंट इज अप्लाइड इन a moment is applied, this truss will rotate in this direction और वो stable नहीं होगा। तो for external stability of a truss, these three, you have to check these three criteria. These are just, when you see, you will check three things, that first you will see that if there are three or more number of support reactions, अगर support reaction थ्री से ज़्यादा है then it is indeterminate, मतलब मेरे पास number of equations is more than the number of unknowns, so it is indeterminate, it is overly safe। और रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर्स हमेशा इंडिटर्मिनेट ही होता है, बिकॉज इफ देर आर जस्ट एग्जैक्टली थ्री सपोर्ट रिएक्शंस, अगर किसी एक में प्रॉब्लम आए तो वो अनस्टेबल बन जाएगा। सो for a structure to be for external stability, there must be three or more support reactions। then you have to check कि all support reactions parallel नहीं होना है, and all three, if there are three or four, और मतलब जितने भी है, all support reactions must not be concurrent or parallel। if not, we can say that the structure is externally stable। अब नेक्स्ट इंटरनल स्टेबिलिटी आ रहा है। इंटरनल स्टेबिलिटी इज अ लिटिल समझना या परसीव करना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज overall equilibrium we understand from class 11 and 12 and all, but this internal stability is directly related to the structure of a truss। so no part of the truss can move rigidly relative to another part। और इधर एक फॉर्मूला तुम्हें, मतलब यू हैव टू रिमेंबर कि नंबर ऑफ मेंबर्स नीडेड फॉर द इंटरनल स्टेबिलिटी, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स नीडेड इज एम, तो इट शुड बी 2j-3। जे इज नंबर ऑफ जॉइंट्स। ये एग्जाम्पल के साथ देखो, इधर 1 2 3 4 5 6, सिक्स जॉइंट्स है। तो 6 into 2 is 12 - 3, मतलब 9। देर मस्ट बी 9 members मिनिमम इन द ट्रस फॉर इट टू बी स्टेबल। अब इधर कितने मेंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिख रहा है, 9 मेंबर्स है। तो दिस स्ट्रक्चर, दिस ट्रस इज अपरेंटली स्टेबल, लेकिन इसमें और एक कंडीशन याद रखना होगा कि मेंबर्स मस्ट बी अरेंज सच दैट द ट्रस कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रायंगुलर ब्लॉक्स। कोई रेक्टेंगुलर और पॉलीगोनल ब्लॉक नहीं हो सकता है। तो इस स्ट्रक्चर में 9 मेंबर है, सो दिस कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड। लेकिन यहाँ पे क्या है, इधर दो बन रख गया और इधर एक भी नहीं है ना, इधर ऐसे क्रॉस मेंबर कोई नहीं है, सो दिस रिमेन्स अ रेक्टेंगल। अगर अगर कहीं भी ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिख गया, उसका मतलब इस ये पार्ट स्टेबल नहीं है। तो इसी ट्रस्ट को अगर हमें स्टेबल बनाना होता, बिकॉज 9 मेंबर्स के साथ मैं एक 6 जॉइंटेड ट्रस्ट को स्टेबल बना सकते हैं हम, तो एक मेंबर यहाँ से उठा के यहाँ पे देना था, देन इट वुड हैव बीन स्टेबल इंटरनली। सो J6 नंबर ऑफ नोड्स एम। और एक चीज़ यहाँ पे नोट नोट करना है कि दिस ऑल्सो अपरेंटली लुक्स लाइक अ नोड, ठीक है, पर ऐसे मेंबर्स क्रॉस ओवर होगा तो इसको बाय डिफॉल्ट नोड नहीं मानना है। अगर यहाँ पे एक सर्कल बना रहेगा तो फिर नोड मानना, अदरवाइज यू एज्यूम दैट दीज आर क्रॉसिंग, दीज मेंबर्स आर क्रॉसिंग अबव ईच अदर एंड दे आर नॉट अ नोड। अगर ये नोड हो जाता, इफ दिस वॉज अ नोड, फिर देखो ये जो हम 2 मेंबर बोल रहे हैं उसको हमें 4 बोलना पड़ता, मतलब एवरी नोड टू नोड, दो नोड को कनेक्ट करने वाले एक ही एलिमेंट हो सकता है। तो इफ देर वॉज अ नोड हियर, तो फिर इसको हम एक मेंबर बोलते हैं, इसको हम एक मेंबर बोलते हैं, इसको एक बोलते हैं, एंड दिस ऑल्सो। सो वी वुड हैव सेड देयर वर 4 members हियर, बट by default you are not going to assume this is a node। by default we will assume that if 2 members cross over, वो node नहीं है, they are crossing like this and there are 2। so इधर
मैंने जो दिखाया कि मतलब एम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इज 9, लेकिन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, तो ये ट्रस्ट इंटरनली अनस्टेबल है। एक्सटर्नली तो ये स्टेबल है। देखो एक्सटर्नली स्टेबल होने के लिए आपने क्या क्या बोला, ये एक हिंज सपोर्ट है, तो इसमें दो रिएक्शन आएगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और ये रोलर सपोर्ट है तो इसमें एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा। एंड दीज ऑल सपोर्ट रिएक्शंस आर नॉट पैरेलल, क्योंकि एक तो यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल डिरेक्शन में भी है और तीन कॉन्करेंट भी नहीं है। So this truss is externally stable but internally unstable. अब हमें एनालिसिस का मतलब क्या है। एनालिसिस इज बेसिकली, स्ट्रक्चर एनालिसिस इज बेसिकली तुम्हें स्ट्रक्चर का डिटेल्स दिया रहेगा। स्ट्रक्चर का डिटेल्स मतलब द क्रॉस सेक्शनल एरियाज, द अरेंजमेंट ऑफ द मेंबर्स, द बाउंड्री कंडीशंस, वो पूरा स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन तुम्हारे पास रहेगा। देन यू विल नो द अप्लाइड लोड ऑन द स्ट्रक्चर, अप्लाइड लोड्स एंड मोमेंट्स वो पता रहेगा। एंड वी वांट टू फाइंड आउट द रेस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का रेस्पॉन्स कैसे कैसे होता है, एक डिफ्लेक्शन होता है। तुम एक ट्रस या कुछ भी एक बीम को तुम ऐसे लोड करोगे, ऐसे वो डिफ्लेक्ट होगा, दैट इज वन रेस्पॉन्स। उसमें कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा, वो एक रेस्पॉन्स है। बेसिकली टू फाइंड द फोर्सेज इनसाइड द मेंबर, टू फाइंड द डिफ्लेक्शन, ये हमारा एनालिसिस का मतलब है। अब वी आर ओनली इन द सेकेंड वीक ऑफ दिस कोर्स, तो अभी हम सिर्फ डिटर्मिनेट ट्रस देख रहे हैं। एंड फॉर नाउ वी आर ओनली गोइंग टू फाइंड आउट द फोर्सेज इन द मेंबर्स। अभी हम डिफ्लेक्शन में नहीं जा रहे हैं, वो बाद में आएगा। So there are two methods of analysis: method of joints and method of sections. एकदम स्टैंडर्ड मेथड है, एंड we'll discuss both of them. Method of joints, this is suitable when the forces in all the members are to be calculated. मतलब एक ट्रस्ट में तुम्हें सारे में मतलब इफ़ यू want to calculate all the forces तभी ये method worth है। otherwise the method of sections can help you if you need the forces in only three members, only 3 or 4 members एक जगह पे, तो method of sections can be more economical, जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर सारे मेंबर्स में कैलकुलेट करना है तो एक एक करके मेथड ऑफ जॉइंट्स को फॉलो करके वी कैन डू इट। एट ईच जॉइंट देर आर टू इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे टू क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम मोमेंट इक्विलिब्रियम नहीं देखेंगे। एक नोड पे हम सिर्फ दो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। मतलब हर नोड पे मैं सारे एक्स डायरेक्शन फोर्सेस को ऐड करके देखेंगे जीरो है, सारे वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को ऐड करके देखेंगे जीरो है, और उसी से दो इक्वेशन आएगा। इसीलिए अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो हम सिर्फ दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं। हेंस दिस मेथड कैनॉट बी अप्लाइड इफ द नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस एट अ पर्टिकुलर जॉइंट इज मोर देन 2। मतलब ये अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ ज़्यादा अच्छे से आएगा। एंड द साइन कन्वेंशन इज फोर्सेस इन अ मेंबर, ऐसे हम डबल एरोज से दिखाते हैं। एक ए बी, दिस इज अ मेंबर, दीज टू आर द नोड्स, ए एंड बी आर द नोड्स, दिस इज द मेंबर। और इधर फोर्सेस दो वे में आ सकता है। एक तो टेंशन है जहाँ पे एरोज पॉइंट अवे फ्रॉम इच अदर, एफ ए बी ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। इफ दिस मेंबर इज अंडर इक्विलिब्रियम, उसको या तो दोनों साइड से सेम फोर्स पुल करेगा या दोनों साइड से सेम फोर्स कंप्रेस करेगा, लाइक दिस। ये कंप्रेशन है, ये टेंशन है। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से वी डू, अगर दोनों ही एरो अवे फ्रॉम इच अदर पॉइंट कर रहा है वी विल कॉल इट टेंशन, एंड दोनों ही एरो अंदर के तरफ पॉइंट करे तो वी विल कॉल कंप्रेशन। तुम ऐसे नहीं ले सकते कि दोनों ही एरो मतलब दिस एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस एंड दिस एरो इज पॉइंटिंग, मतलब दोनों ही एरो अगर लेफ्ट में पॉइंट करेगा तो वो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं ना। तो एफ ए बी इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, वो एक मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सपोज 10 kN, माइनस नहीं, मतलब या तो दोनों ही माइनस है या दोनों ही प्लस है, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। दिस एफ ए बी को हम पॉजिटिव मानेंगे, और या तो वो 10 kN दोनों साइड में अवे फ्रॉम द मेंबर जाएगा, तो वो तो मेंबर टेंशन दैट इज अंडर टेंशन वो समझ में भी आएगा। एक रॉड को तुम ऐसे दोनों साइड से खींचोगे, दैट उसी को हम टेंशन बोलते हैं, और दोनों साइड से पुश करोगे अंदर तो कंप्रेशन बोलेंगे। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है जीरो फोर्स मेंबर, मतलब एक मेंबर जिसमें फोर्स नहीं है। तो इसको चेक करने का एक सिंपल मेथड है। ऑब्वियसली एक तो है कि यू सॉल्व द एंटायर ट्रस, उसी से इक्वेशन से तुम्हें कुछ फोर्स में अगर जीरो फोर्स आया तो वो तो है ही, बट देर इज अ शॉर्टकट टू आइडेंटिफाई इट। अगर एक जॉइंट पे 3 मेंबर्स मीट करे, 2 मेंबर कोलिनियर है, और उस नोड पे नोड एंड जॉइंट आर इंटरचेंजेबल, ठीक है, हम नोड भी बोलते हैं जॉइंट भी बोलते हैं, द थिंग इज द सेम। देन अगर देर 3 मेंबर्स मीट एट अ पॉइंट एट अ जॉइंट,
उनमें से दो कोलिनियर है और उस पॉइंट पे कोई सपोर्ट रिएक्शन या एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जो थर्ड वाला नॉन कोलिनियर मेंबर है उसमें जीरो फोर्स रहेगा। क्यों, ये यहाँ पे समझ आएगा। लुक एट दिस ट्रस, इसमें लुक एट दिस जॉइंट सी, ठीक है, इसमें तीन मेंबर है, सी ए, सी बी एंड सी डी। तीन मेंबर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कोई, इस जॉइंट पे कोई फोर्स नहीं है, कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं है। सो इसका इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई अगर तुम्हें करना है, तुम देखोगे एफ सी ए will be directed around the horizontal axis, FCB is also directed around the horizontal axis। तो और ये वाला जो CD है not along that। तो हमारे पास दो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है जॉइंट पे। एक है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंजर्व, हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स को ऐड करके देखना है, जीरो है, तो एफ सी ए और सी बी का तो वो हो जाएगा। और एक हमारा है कि उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स कंजर्व होना है। तो एफ सी डी इज पॉइंटिंग इज लाइक दिस, ऐसे है, इस अलोंग दिस एक्सिस है। अब उसको बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है बेसिकली। इफ एफ सी डी इज नॉट जीरो, अगर एफ सी डी का एक नॉन जीरो मैग्नीट्यूड है, तो इस पॉइंट पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज देर इज नो अदर फोर्स टू काउंटर एफ सी डी। सो उसको जीरो होना ही है। एंड अगर सी डी वर्टिकल ना भी होता, सपोज सी डी वॉज ओरिएंटेड इन सम डिरेक्शन दैट इज नॉट अलॉन्ग दिस, ऐसे सी ए और सी बी हॉरिजॉन्टल है एंड सी डी इज इंक्लाइंड सपोज 45 डिग्री, तब भी सेम ही चीज़ होता, बिकॉज इफ एफ सी डी वॉज ओरिएंटेड लाइक दिस, तो उसका एक कंपोनेंट अगर ऐसे एक फोर्स आ जाता यहाँ पे, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता कॉस थीटा करके, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता साइन थीटा करके, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बैलेंस हो सकता है इनमें, मतलब एफ सी ए, एफ सी बी एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ सी डी माइट हैव बैलेंस्ड इट। लेकिन उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ एंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, उसको बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है। सो दिस इज बेसिकली, if two members are collinear, the non-collinear member has to carry zero force। उसका मतलब ये नहीं कि non-collinear member को उसका perpendicular ही रहना है, कोई भी direction में होगा तो zero ही होगा। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, इस एग्जाम्पल में ये पहले फिर से हम इस जॉइंट सी को देखेंगे, सी को देखेंगे तो सी डी में जीरो है, वो समझ आ रहा है, क्योंकि सी डी में इस डायरेक्शन में फोर्स है तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है। नाउ अगर इफ दिस मेंबर सी डी कैरीज नो फोर्स, इट इज एज गुड एज इफ द मेंबर डजेंट एग्जिस्ट। अब तुम उस मेंबर को मिटा सकते हो अपने ड्राइंग से, उसको हटा दो। हाँ, तो तुम सी डी को हटा दे सकते हो अपने ड्राइंग से, देन द स्ट्रक्चर विल हैव, अब तुम डी जॉइंट को देखो, डी जॉइंट को देख रहे हो, सी डी इज नॉट देयर एज्यूम, तो हमारा क्या है, एफ डी ई, एफ डी बी और एफ डी ए यहाँ पे है। अब इसमें फिर से तुम देखो, दीज टू फोर्सेस कैन बैलेंस ईच अदर, बट दिस इंक्लाइंड मेंबर, इसका एक कंपोनेंट रहेगा परपेंडिकुलर टू दिस ई बी डी, ये डायरेक्शन, उसका इस डायरेक्शन में जो फोर्स रहेगा, दैट कैनॉट दैट देर इज नो वन टू बैलेंस, तो ये ए डी मेंबर है ना, ये भी जीरो फोर्स मेंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आइडेंटिफाई जीरो फोर्स मेंबर, एक इट ऑफन हैपन्स कि एक जीरो फोर्स मेंबर आ जाए, उससे और जीरो फोर्स मेंबर दिखने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, इस जॉइंट को देखेंगे तो इधर कोलिनियर है, ये दोनों कोलिनियर है, तो ये जो किया है ये जीरो फोर्स मेंबर है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, देन कम टू दिस जॉइंट, इस जॉइंट में फिर से क्या हो गया, ये दोनों मेंबर कोलिनियर है और ये इसके इसके मतलब नॉन कोलिनियर है, तो इसमें भी कोई जीरो नहीं रहेगा, कोई फोर्स नहीं रहेगा, तो ये भी जीरो फोर्स मेंबर है। ऐसे करते करते जाएंगे, सो वी विल सी दैट दिस इज ऑल्सो अ जीरो फोर्स मेंबर, दिस इज ऑल्सो अ जीरो फोर्स मेंबर, दिस इज ऑल्सो अ जीरो फोर्स मेंबर। मतलब इधर से फर्स्ट इधर से आके ये जीरो आया, ये जीरो आ गया हमारा, फिर इधर से हम आएंगे तो ये जीरो आएगा, क्योंकि ये दोनों कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है। देन फिर से हम ये जॉइंट को देखेंगे तो क्या, दिस टू आर कोलिनियर, दिस इज नॉट, तो ये भी जीरो फोर्स मेंबर है। और जीरो फोर्स आएगा ना को, तो उसको एक बार मिटा के देख लेना शुरू में, दैट विल हेल्प। एंड अगर दिस इज अ जीरो, दिस इज नॉट देयर, दिस इज नॉट देयर, फिर ये मेंबर को देखोगे एट दिस जॉइंट, इट अगेन कम्स टू सेम थिंग, इधर दो कोलिनियर है, ये कोलिनियर नहीं है, तो ये भी जीरो है। सो देर आर, देख के लग ही नहीं रहा था, फॉर हमने शुरू में क्या बोला कि इफ थ्री मेंबर्स मीट एट अ जॉइंट, हम वी कैन आइडेंटिफाई जीरो फोर्स मेंबर स्ट्रेट अवे। तो इस मेंबर को इस मेंबर जहाँ पे भी मीट करे, इतने सारे मेंबर मीट हो रहे, 1 2 3 4 5,
बट आउट ऑफ दैट, इफ ये दोनों हम यहाँ से आके ये दोनों को जीरो बोल दिए तो दिस विल ऑल्सो बी अ जीरो फोर्थ मेंबर। तो एक एक करके आना होगा। फर्स्ट मार्क आउट द वंस जो दिख रहा है सीधा, जैसे ये वाला सिमिलरली लाइक दिस वन, इस जॉइंट को देखोगे तो ये दोनों को कोलिनियर है और ये कोलिनियर नहीं है, तो ये तो जीरो सीधा दिख रहा है। दिस वन इज ऑल्सो सीधा दिख रहा है। जो पहले सीधा दिख रहा है उसको क्रॉस आउट कर दो, फिर उसके बाद एक एक करके जाना। जैसे ये वाला जीरो, ये जीरो आ रहा है तो ये भी जीरो आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन पे है। तो दिस इज हाउ पहले अगर एक ट्रस्ट मिले, उसमें उसमें सबसे पहले जीरो फोर्थ मेंबर को आइडेंटिफाई करके उनको हटा दो, बिकॉज द लेस नंबर ऑफ मेंबर्स तुम्हारा एनालिसिस का ईजियर होगा ना, बिकॉज इट इज़ द मेंबर फोर्सेज दैट वी वांट। अल्टीमेटली स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम सारे मेंबर्स में कितना फोर्स है वही वी वांट टू फाइंड आउट। तो जीरो फोर्स मेंबर को जितना भी दिखे उसको हटा दो, देन सी व्हाट रिमेन्स एंड देन स्टार्ट एनालाइजिंग। ये एक एग्जांपल है, वेरी सिंपल एग्जांपल। सो इन दिस ट्रस्ट, शुरू में इफ़ यू सी, यू कैन सी दैट दिस विल बी अ जीरो फोर्स मेंबर सी डी। तो यहाँ पे फर्स्ट वी विल, हम बस चेक करने के लिए वी विल एनालाइज द एंटायर ट्रस्ट टू सी कि मेथड ऑफ जॉइंट से सी डी में जीरो ही आ रहा है या नहीं। सो सबसे पहले इफ आई गेट अ स्ट्रक्चर, आई नीड द रिएक्शन फोर्सेज। तो रिएक्शन फोर्सेस निकालने के लिए वी हैव थ्री इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, the sigma fx equal to 0, sigma fy equal to 0 and moment about any one point is 0। जैसे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम के लिए भी हमारा फर्स्ट स्टेप यही था, फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शंस। सो इधर भी कोई इट इज़ नथिंग डिफरेंट। तो इधर देखो, एफ सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो में हमारे इस एक्स डायरेक्शन में, ये दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज द वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में बस एक ही फोर्स है एच ए, तो एच ए हैज़ टू बी जीरो, क्योंकि और कोई है ही नहीं। बट और कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम के लिए ऑफ कोर्स एच ए हैज़ टू बी जीरो। दिस इज अ हिंज सपोर्ट, सो देर आर टू सपोर्ट रिएक्शंस, और ये रोलर सपोर्ट है तो इसमें एक रिएक्शन होगा। एच ए इज जीरो। अब मैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो हम देखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है, एफ ए, एफ बी एंड डब्ल्यू नीचे की तरफ। तो हम इधर आर ए प्लस आर एफ ए, मतलब सॉरी आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू, और एक वे में भी लिख सकते थे कि आर ए प्लस आर बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, इट इज़ द सेम थिंग। और किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है तो हम ए के अबाउट लेंगे, बिकॉज दोनों रिएक्शन है ना यहाँ पे। अगर इफ वी टेक अबाउट ए, then both these reactions will have no moment about A obviously, because moment is force applied into distance, तो इधर डिस्टेंस जीरो है। सो जनरली हम ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम वी टेक मोमेंट अबाउट द पॉइंट वेयर देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्सेस, सिर्फ मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए। सो इसके अबाउट मोमेंट लेंगे। सो विच फोर्सेस विल कंट्रीब्यूट, एच ए एंड आर ए विल नॉट कंट्रीब्यूट, आर बी विल कंट्रीब्यूट इस डायरेक्शन में। वट ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हमने माना है इधर, तो आर बी इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टू ए, सो आर बी इंटू टू ए माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये डब्ल्यू क्लॉकवाइज अबाउट ए, डब्ल्यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स मोमेंट दे रहा है। सो डब्ल्यू इंटू ए, दिस इज वन इक्वेशन। इधर से हमारा आर बी आ रहा है डब्ल्यू बाई टू, और दिस इक्वेशन आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू से आ रहा है आर ए इज ऑल्सो डब्ल्यू बाई टू। और सिमेट्री से ये दिख भी जाता है कि दिस इज द स्ट्रक्चर, उसका एकदम सेंटर लाइन के अलॉन्ग एक डब्ल्यू फोर्स दिया है, तो दोनों ही रिएक्शन डब्ल्यू बाई टू आएगा। दैट व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस, तब ये सिमेट्री वाले कंडीशन यूज करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। फॉर नाउ यू कैन जस्ट सॉल्व द इक्वेशंस, then we start applying the method of joints। अब हम दिस इज हाउ वी अप्लाई, वी टेक अ जॉइंट, पहले एक जॉइंट लिया ए, उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस है उसको मार्क कर दो। इधर दिस इज ए, आर ए का वैल्यू क्या हमने निकाला, डब्ल्यू बाई टू, ड्रॉ दिस डब्ल्यू बाई टू। एच ए जीरो था तो उसको ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं। और इधर दो मेंबर्स है, एक एफ ए सी होगा, एक एफ ए डी होगा। और हमने एरो बाहर की तरह क्यों दिया है, वी हैड साइन कन्वेंशन कि इधर साइन कन्वेंशन बेसिकली इम्प्लाइज कि अगर हम जॉइंट से आउटसाइड वी आर टेकिंग द फोर्स आउटसाइड द जॉइंट, मैंने पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द जॉइंट, तो उसको हम उस दिस इज बेसिकली टेंशन, अवे फ्रॉम द जॉइंट मतलब टेंशन। तो अगर हमारा सॉल्व करके इस फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, देन हमें पता चलेगा कि ये दिस मेंबर इज अंडर टेंशन। और अगर नेगेटिव आएगा, सपोज ये एफ ए सी यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो दिस एरो इज बेसिकली पॉइंटिंग इनवर्ड्स, तो दैट मेंबर इज अंडर कंप्रेशन। तो पहले हम मान लेते हैं कि सारे मेंबर्स टेंशन पे है, वी विल जस्ट एज्यूम। सो वी ड्रॉ द फोर्सेस
पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द जॉइंट। सारे फोर्सेस जितने भी मेंबर ये जॉइंट पे मीट करेंगे वी विल ड्रॉ लाइक दिस आउटसाइड पॉइंटिंग। तो एफ ए सी आ गया, एफ ए डी आ गया। नाउ अब हम मेथड ऑफ जॉइंट्स में क्या करते हैं, एट एवरी जॉइंट हम दो इक्वेशन लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। तो और और हमारा वही एक कंडीशन भी था, मेथड ऑफ जॉइंट्स इज ओनली वैलिड उसी जॉइंट्स पे वैलिड है जिस पे हमारे पास बस दो अननोन है, उससे ज़्यादा अननोन है तो वैलिड नहीं होगा। तो दिस होल्ड्स हियर क्योंकि यहाँ पे दो ही अननोन है। तो हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है, एफ ए डी एक है, एफ ए डी और एफ ए सी का एक कंपोनेंट है ना। तो एफ ए सी इंटू कॉस 45 एंड दे आर बोथ पॉइंटिंग इन द राइट डायरेक्शन। सो दिस इज आर इक्वेशन, एफ ए डी प्लस एफ ए सी इंटू कॉस 45 इज जीरो। और इधर से ये इक्वेशन को पहले कीप इट असाइड, अभी सॉल्व तो कर नहीं सकते क्योंकि इस इक्वेशन में दो अननोन है। देन सिग्मा एफ वाई इज जीरो, हमारे वाई डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है, एक हमारा डब्ल्यू बाई टू है जो रिएक्शन था एंड अनदर इज एफ ए सी का साइन कॉम्पोनेंट, एफ ए सी साइन 45 एंड दे आर ऑल्सो बोथ pointing upwards. So w by 2 plus f a c sin 45 is 0। इधर से we can solve f a c क्योंकि इस इक्वेशन में बस एक अननोन है। So f a c is minus w by root 2 और इस एफ ए सी का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एफ ए डी आ जाएगा हमारा डब्ल्यू बाई टू। और इधर एफ ए सी माइनस आया है, उसका मतलब क्या है कि वो कंप्रेशन में है, मतलब एफ ए सी इज नॉट एक्चुअली पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। हम मान लिए थे बाय डिफॉल्ट इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है बट एक्चुअली इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जॉइंट। दैट मीन्स दिस मेंबर इज अंडर कंप्रेशन एंड दिस मेंबर इज अंडर टेंशन। ओके, सो नाउ अभी हमारे कितने मेंबर्स टोटल थे, एक दो तीन चार पाँच, वी हैड 5 मेंबर्स, वी हैव सॉल्व द फोर्सेस इन 2 मेंबर्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट जॉइंट, वी मूव टू जॉइंट डी। जॉइंट डी कौन सा है, दिस वन। जॉइंट डी पे हम वी ऑलरेडी नो दिस फोर्स, रिमेंबर दैट। पहले जॉइंट अगर तुम्हें जब प्रॉब्लम शुरू में मिला है, अगर जॉइंट डी पे तुम ये मेथड अप्लाई करने जाओ सो देन इट विल नॉट वर्क बिकॉज देर आर 3 अननोन्स, एफ ए डी एफ डी बी डी एंड सी डी आर ऑल अननोन। लेकिन इसीलिए हमने पहले यहाँ से सॉल्व करके ये एफ ए डी, तो नाउ वी हैव दैट वैल्यू। नाउ वी कैन मूव ऑन टू दिस जॉइंट बिकॉज ओनली डी सी एंड डी बी आर आर अननोन्स। सो इधर एफ ये डी बी और ये एफ डी सी है एंड दिस वी ऑलरेडी नो इज डब्ल्यू बाई टू एंड ये वाई इज दिस पॉइंटिंग अवे बिकॉज हमने सॉल्व किया था, वी फाउंड डब्ल्यू बाई टू इज पॉजिटिव। सो we will make this force point away from the joint and write it as w by 2। एंड यहाँ पे डी सी और डी बी अगेन वी बाई डिफ़ॉल्ट वी एज्यूम कि वो बाहर की तरह पॉइंट कर रहा है, हम बाई डिफ़ॉल्ट पहले टेंशन मान रहे हैं। अब ये देखो एफ सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, उससे हमारा आ रहा है कि एफ डी बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू, क्योंकि बस दो ही फोर्स है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड दिस मीन्स एफ डी बी इज ऑल्सो अंडर टेंशन। और तुम जब वाई डायरेक्शन में फोर्स को कंजर्व करोगे देन यू विल सी दैट देर इज ओनली वन फोर्स एफ डी सी एंड दैट हैज़ टू बी जीरो बिकॉज देर इज नो वन एल्स टू बैलेंस इट। सो इसको पहले हम जीरो फोर्स मेंबर जैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे, उस हिसाब से भी हमारा डीसी जीरो फोर्स मेंबर ही आता है बिकॉज दीज टू आर कोलिनियर एंड दिस इज नॉट दैट, बट इक्वेशन वाइज भी हमें वही आ रहा है। एंड देन वी फाइनली अब हमारे पास वी हैव 2 मेंबर्स लेफ्ट। वी हैव नाउ वी हैव सॉल्व्ड ए डी ए सी और सी डी, ये दोनों का हमारा सॉल्व हो गया और डी बी भी सॉल्व हो गया है। सो ओनली एक्सक्यूज मी, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? Hello. हेलो, Good evening, madam. यस, This is Sandhya. I got the email that want to join this class. okay, so are you enrolled in the structure analysis NPTEL? Yes, yes, madam. Okay, okay, so you can join this, no problem. We Okay, This is a week thank 2 you. we are discussing. Week 2, the topic is trust. Can you please mute yourself Okay, for the. yes, ma'am. ओके, हमारा ये 4 5 मेंबर में से 4 का फोर्स हमारा आ गया है, ओनली बी सी का बाकी है। सो वील नाउ लुक एट दिस जॉइंट बी। जॉइंट
दिस इज जॉइंट, वी आर कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट बी. जॉइंट बी पे क्या क्या फोर्सेस है, एफ बी सी दैट वी डोंट नो येट, तो वी हम बाय डिफॉल्ट बाहर की तरह मान लिए. This force, this FDB, we have already found out as W by 2. So it will point away from the joint because it is under tension. So ये और रोलर से हमारा एक रिएक्शन था यहाँ पे, तो W by 2 we mark this as well. So we have only one unknown at this joint, so we can apply it. हम x direction में force conserve करेंगे तो we'll get W by 2 in this direction और FBC का ये एक component. ये साइन होना चाहिए, आई मीन दिस शुड बी कॉस, बट इट्स फाइन, 45 डिग्री का तो दोनों इक्वल है. सो डब्ल्यू बाई टू प्लस एफ बी सी कॉस थीटा इज जीरो. सो एफ बी सी हमारा नेगेटिव आ रहा है, -W/√2. सो दिस इज अंडर कंप्रेशन. सो हमारे पास 5 फोर्स आ गए हैं, एंड सी हाउ वी मार्क दैट. दिस मेंबर, this member we found out is under compression and this is under compression. तो हम we put these arrows towards the joint, these are under compression, ये दोनों tension में है, and this is a zero force member. Now generally ये arrow draw करने देते नहीं है. Normally in questions you will just be asked if the magnitude of force in the member and if it is under tension or compression. So for अगर आंसर लिखना है, सो वील राइट एफ ए सी एंड इज W/√2 कंप्रेशन. उधर साइन मत लिखना. यू कैनॉट राइट साइन इन द आंसर अनलेस यू मेंशन द साइन कन्वेंशन इन द आंसर, क्योंकि साइन कन्वेंशन यू आर एज्यूमिंग, इट इज़ नॉट, साइन कन्वेंशन कभी यूनिवर्सल नहीं होता. साइन कन्वेंशन ऑलवेज यू हैव टू मेंशन. या तो साइन कन्वेंशन मेंशन करके बोलो -W/√2 एज्यूमिंग टेंशन इज पॉजिटिव, और जस्ट मेंशन द फोर्स इन मेंबर एफ इन member BC is W/√2 and it is under compression. So we have solved the five forces in all 5 members, and this is what is called known as solving the truss. हमें सारे forces में सारे members में force आ गया. अब force आ गया है तो हम stress निकाल सकते हैं because force is stress by area. अगर इसका truss का cross sectional area दिया रहता, so we can find the stress in the truss. एंड और एक रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर का होता है इस डिफ्लेक्शन, दैट वी आर नॉट कंसिडरिंग राइट नाउ. डिफ्लेक्शन हम बाद में देखेंगे, आई थिंक, आई डोंट नो विच वीक, बट या डिफ्लेक्शन विल बी टॉट लेटर ऑन. दिस इज अनदर क्वेश्चन. इसमें भी सारे निकालना है. तो फर्स्ट स्टेप इज सॉल्विंग द सपोर्ट रिएक्शंस. सो सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, तो दिस हिंज पे देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल फोर्स. देयर विल बी 2 वर्टिकल रिएक्शंस, आर पी एंड आर क्यू. So we have two equilibrium equations. One is sigma Fy is 0. So Rp plus Rq is equal to 60 plus 30. तो इधर एक इक्वेशन आ गया, Rp plus Rq is 90, एंड हम किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे. सो we generally take it about one of the support reaction points. हम क्यों लेते हैं? See, we could have also conserved the moment about this point. Okay, कोई भी point, तुम कोई भी point उठा के उसके about moment करोगे, you will end up with the same answer. But हम यहाँ पे support reaction पे के around ही moment लेते हैं, so that this आर क्यू इसका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं आएगा और आर पी सीधा निकल जाएगा. तो वी आर टेकिंग अबाउट दिस पॉइंट. सो आर पी इंटू 3h, क्योंकि ये इसका ऐसे ऐसे ये फोर्स है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम क्यू इज 3h. सो पी इंटू आर पी इंटू 3h, दिस इज अ क्लॉकवाइज मोमेंट. तो इस साइड हम क्लॉकवाइज मोमेंट लिख रहे हैं, इक्वल टू दूसरे साइड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऐड करना होगा, बिकॉज हम दो मेथड में अप्रोच कर सकते हैं, या तो टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, टोटल किसी एक को पॉजिटिव मान लो. अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो, सो राइट ऑल द मोमेंट्स विथ साइन एंड इक्वेट देम टू 0. यहाँ पे we are equating this clockwise moment which is on the left hand side, and anti clockwise moment यहाँ पे एक 60 है. 60 क्यू के अबाउट इस डायरेक्शन में दे रहा है, ऐसे मतलब ऐसे करके देख लेना कि किस सेंस में दे रहा है. और 60 इंटू 2h प्लस 30 इंटू h, वो भी ऐसे इसी डायरेक्शन में सेंस में दे रहा है. एक्चुअली डायरेक्शन नहीं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर कॉल्ड सेंसेस. सो ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दे रहा है. सो वी गेट दिस इक्वेशन. यहाँ से आर पी आ रहा है 50 किलो न्यूटन, एंड फ्रॉम पुटिंग दिस इन दिस इक्वेशन वी गेट आर क्यू इज 40 किलो न्यूटन. दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर. यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, तो हमारा सपोर्ट रिएक्शन भी सिमेट्रिक आ नहीं रहा. अगर यहाँ पे देखो, अगर बोथ ऑफ देम वे 30 किलो न्यूटन और ये सिमेट्रिकली अप्लाइड होता, कि मतलब इस सपोर्ट से एच डायरेक्शन में एक 30 है, इस रिएक्शन से एच डिस्टेंस पे एक 30 है, तो हम बोल सकते थे कि दोनों ही सपोर्ट रिएक्शन 30 ही आता. सॉल्व करके भी सेम ही आता, बिकॉज दैट वुड हैव बीन अ सिमेट्रिक कंडीशन ऑफ लोडिंग. लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, तो द रिएक्शंस विल नॉट कम आउट एज इक्वल. अब हम सॉल्व करने के लिए वी स्टार्ट फ्रॉम जॉइंट पी.
जॉइंट पी पे हमारा दो अननोन है, एक एफ पी टी, एक एफ पी आर. सो दिस इज एफ पी टी, दिस इज एफ पी आर, और दोनों ही जैसे हम हमेशा करते हैं, हम बाहर की तरह मान लेते हैं टेंशन पॉजिटिव करके. सो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो एफ पी टी प्लस एफ पी आर का कॉस कॉम्पोनेंट प्लस एफ पी आर 45 कॉस 45 डिग्री इज जीरो. तो यहाँ से एक इक्वेशन आ रहा है कि एफ पी टी इज माइनस एफ पी आर बाई रूट टू, एंड फ्रॉम द वर्टिकल इक्विलिब्रियम हमारा आएगा कि 50 प्लस एफ पी आर का साइन कंपोनेंट, एफ पी आर साइन 45 इज जीरो. सो वी गेट एफ पी आर इज माइनस 50 रूट टू, माइनस आ रहा मतलब वो कॉम्प्रेशन में है, और इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो एफ पी टी इज प्लस 50, दैट मीन्स वो टेंशन पे है. नाउ वी मूव ऑन टू दिस जॉइंट. इस जॉइंट पे पहले से क्या था देखो. अच्छा, दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट. इन एट दिस जॉइंट हमारा टू मेंबर्स आर कोलिनियर और एक नॉन कोलिनियर है, लेकिन आर टी को जीरो फोर्स मेंबर हम नहीं बोल सकते बिकॉज यहाँ पे एक एक्सटर्नली अप्लाइड लोड है. तो वो जो हम लॉजिक पहले लगा रहे थे कि उसका दो कोलिनियर है और एक नॉन कोलिनियर है, तो उसका वो कंपोनेंट, उसका वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं रहेगा, दैट लॉजिक इज नॉट एप्लीकेबल एनीमोर. तो हम नहीं बोल सकते आर टी जीरो फोर्स मेंबर है, वी हैव टू सॉल्व इट. और शुरू में जब टी जॉइंट को देखेंगे, देर वर थ्री अननोन्स एट दैट. तीन मेंबर वहाँ पे मीट हो रहे हैं, मतलब तीन अननोन थे, पर हमने एफ पी टी सॉल्व कर लिया है. नाउ देर आर ओनली टू अननोन्स, सो वी कैन सॉल्व इट. सो इधर टी जॉइंट पे 50 किलो न्यूटन पॉइंटिंग अवे, क्योंकि वो टेंशन में, दिस पी टी इज अंडर टेंशन, तो एक 50 यहाँ पे है, एक 60 अप्लाइड लोड हमारा है. सो एफ टी यू एंड एफ टी आर अननोन्स राइट नाउ. तो उधर हम इक्विलिब्रियम करेंगे सीधा. दिस इज़ वेरी सिंपल बिकॉज यहाँ पे ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे ही. एफ टी यू विल ऑल्सो बी अंडर 50 किलो न्यूटन टेंशन, एंड यहाँ पे 60 नीचे की तरह है, तो यहाँ पे 60 ऊपर की तरह हमें होना है. तो एफ टी आर विल बी 60 किलो न्यूटन, इट विल ऑल्सो बी टेंशन. एंड हम नेक्स्ट हमारा अभी ये दो आ गया, ये दो आ गया. नाउ सी लुक एट दिस जॉइंट यू. अभी हम यू पे जा नहीं सकते बिकॉज यू पे देर आर स्टिल थ्री अननोन्स. हम यू आर, यू एस, यू क्यू तीनों ही नहीं जानते. सो वी विल नाउ अप्रोच फ्रॉम दिस साइड. हम क्यू पे जा रहे हैं, यहाँ पे दो अननोन है, विल सॉल्व दैट एंड देन वी कैन मूव ऑन टू यू और एस. सो एट जॉइंट क्यू सी, एक हमारा सपोर्ट रिएक्शन था 40 किलो न्यूटन, एक दिस इज एफ क्यू यू एंड दिस इज एफ एस क्यू. ओके, एक चीज़ मेंशन, वन थिंग टू बी नोटेड हियर इज, हम जब लिखते हैं व्हेन वी आर एट अ जॉइंट, हम लिखते हैं कि जैसे हम यहाँ पे क्यू जॉइंट पे है, तो हम सारे फोर्सेस को जैसे इसका सब्सक्रिप्ट हम क्यू यू दे रहे हैं, क्यू एस दे रहे हैं, और अगर हम एस से देखेंगे तो शायद हम इसको एस क्यू बोलेंगे, बट दे आर द सेम. एक मेंबर में एक ही फोर्स है, हम उसको लिख रहे हैं क्यू एस या एस क्यू, इट डजेंट मैटर, दैट इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस. लेकिन हम दोनों साइड से आएंगे तो इक्वली आएगा, एंड दोनों साइड से या तो टेंशन आएगा या कंप्रेशन आएगा. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि एफ क्यू एस एंड एफ एस क्यू आर डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि एक मेंबर को इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसका थ्रू एक ट्रस में एक मेंबर के थ्रू एक ही फोर्स रहता है, बस एक एक्शियल फोर्स रहता है जो टेंशन हो सकता है या कंप्रेशन हो सकता है. So either we have two unknowns and again we use the equations of equilibrium. F sigma fx equal to zero करेंगे तो एफ क्यू यू प्लस एफ क्यू एस इंटू कॉस 45 डिग्री जीरो होगा. और वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो एफ क्यू एस का साइन कंपोनेंट प्लस 40, इट शुड बी जीरो. So we get that FQS is under compression of this magnitude and FQU is under tension of this magnitude. So now हमारे कौन सा solve हो गया? We have these two. We have PR, PT, TR, TU and QS and QU we have. तो अभी हमारे तीन बचे हैं, RS, RU and SU. ये तीन हमारे बचे हैं. So we'll move on to joint S. joint S में जाएंगे तो हाँ, जॉइंट टेस्ट में हमारे कितने अननोन है अभी, एस आर एंड एस यू, एंड दिस एस क्यू वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट. तो अब दिस इज इंटरेस्टिंग, ये पहली बार हमारा एनकाउंटर हुआ है कि इधर हमारा कंप्रेशन फोर्स था ना क्यू एस, तो वी आर पॉइंटिंग इट टुवर्ड्स द जॉइंट. नोट दैट बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड आ गया है तो सीधा इसको अवे फ्रॉम द जॉइंट पॉइंट ड्रॉ मत कर देना. वंस यू हैव सॉल्व द मेंबर यू नो वेदर इट इज टेंशन और कंप्रेशन, और उसी हिसाब से इसका ये डालना. सो इट हैज़ टू बी लाइक दिस. कंसिडर इक्विलिब्रियम जॉइंट एस, तो एफ एक्स जीरो करेंगे तो दिस एस आर प्लस 40 रूट
टू इंटू साइन, इसका साइन कंपोनेंट होगा, साइन 45 डिग्री 0 होगा, तो एफ एस आर इज कमिंग आउट टू बी -40, मतलब वो कंप्रेशन है, और इसका वाई डायरेक्शन में करेंगे तो एफ एस यू इज इक्वल टू 40√2 cos 45 किया है, क्योंकि ये उसका इसका ये कंपोनेंट तो ऊपर की तरह होगा, तो ये एफ एस यू नीचे की तरह पॉइंट कर रहा है, और दिस इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरह हो रहा है। हाँ, तो वी कैन सो वी आर गेटिंग एफ एस यू इज 40 kN अंडर टेंशन। तो हमारे सारे मेंबर सारे फोर्स आई गेस सॉल्व हो गया, या एक बचा है क्या? एक सेकंड। आई थिंक हमारा ये आर यू बच गया है शायद, बट टू सॉल्व आर यू अगेन आर इधर जॉइन, अभी एक मेंबर छोड़ के सारे का हमारा फोर्स आ गया है ना, सो नाउ यू कैन कंसिडर जॉइंट यू और जॉइंट आर, किसी एक को भी कंसिडर करोगे, वी नो ऑल द अदर फोर्सेस, सो बस एक अननोन रहेगा एंड यू कैन सॉल्व इट द सिमिलर वे, सो वी कैन गेट ऑल द मेंबर्स। दिस इज, अब ये मेथड ऑफ जॉइंट्स था, और ये काफ़ी इलेबोरेट है, क्योंकि यहाँ पे वी हैव टू गो जॉइंट वाइज, वी हैव टू सॉल्व टू फोर्सेज ऐसे करते करते हमें पूरा ट्रस्ट सॉल्व करना होता है। सो इफ वी नीड टू सॉल्व द मेंबर फोर्सेज इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट, वी हैव टू फॉलो दिस मेथड ऑफ सेक्शंस। मैं वो उसको शॉर्टकट नहीं बोलूँगी, बट इट टेक्स लेसर नंबर ऑफ टाइम्स, लेसर अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि 2-3 मेंबर का ही सॉल्व करना रहता है इसमें। सो दिस इज सुटेबल व्हेन फोर्सेज आर रिक्वायर्ड इन ओनली फ्यू मेंबर्स। इधर हो पूरा ट्रस्ट को वी कट इन टू पोर्शंस वाया सेक्शंस। सेक्शन का कॉन्सेप्ट शायद अभी तक यू हैव नॉट एनकाउंटर्ड बिफोर इन एनी कोर्स, और तो ये समझाना है। एंड इक्विलिब्रियम ऑफ ईच पोर्शन इज कंसर्न्ड, अब इज कंसिडर्ड। अब देखो इधर दिस इज द ट्रस, इधर मैंने एक सेक्शन काटा है, जस्ट द वे, जस्ट इमेजिन करो यू आर कटिंग इट थ्रू अ सेक्शन, इट कैन बी, ये पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, इसको यू कैन ऑल्सो कंसिडर अ कर्व्ड लाइन, बट वट एवर यू आर कटिंग दिस, सो इसको अब तुम ड्रॉ करोगे लाइक दिस, उसका लेफ्ट साइड को उसका राइट साइड को यू विल ड्रॉ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, द members that we have cut 3 members, CD, HD and GD, these 3 we have cut, so we have to put these forces here। मतलब अगर मैंने यहाँ पे काट दिया है, जैसे सी एक, जब जब हम इसको एज अ होल इस ट्रस्ट को कंसिडर कर रहे हैं, तब इसके जो इंटरनल फोर्सेज मतलब मेंबर फोर्स है, जो मेंबर फोर्स है दे कैंसल ईच अदर आउट, मतलब सारे जॉइंट, मतलब एक जॉइंट पे इस साइड से भी है उस साइड से भी है, सो इन द एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम वी डोंट हैव टू कंसिडर द इंटरनल मेंबर फोर्सेस। लेकिन इफ यू कट अ सेक्शन, इफ यू कट थ्रू सम मेंबर्स, उस मेंबर का इंटरनल फोर्स ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉ इन द फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो इस साइड का हम जब ड्रॉ कर रहे हैं, दिस मेंबर ए एच एंड ए सी एंड एच सी, इनको हमने काटा नहीं है, तो देयर इंटरनल फोर्सेज वी आर नॉट राइटिंग इन द फ्री बॉडी डायग्राम, बट एच डी का एफ एच जी एच डी एंड सी डी का वी आर ड्राइंग इट, एंड बाई डिफॉल्ट द वे वी डू, हम पहले बाहर की तरह मान रहे हैं एरो, वी आर अज्यूमिंग दे आर अंडर टेंशन बट दे कैन कम नेगेटिव, वो बाद में देखेंगे। एंड सिमिलरली इसका जब तुम राइट साइड कंसिडर करोगे, तब भी ये जो सारे मेंबर्स है, देयर वर सो मेनी मेंबर्स इनसाइड दैट हैव नॉट, दैट डू नॉट, मतलब सेक्शन, द सेक्शन डज नॉट एनकाउंटर दीज, तो इसका ये जो एफ ये सारे जो होगा बी एफ या कुछ, that we will not mark, but here the three members that are being cut, we have to mark them, FHT, FHG and FCD. This is how we draw the free body diagram of the two sides. अब the whole truss is cut into portions via sections and equilibrium of each portion is considered. इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में होना होगा, एंड हियर 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ईच पोर्शन। ये पोर्शन को एज अ होल देखोगे, और इसमें सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और मोमेंट अबाउट जेड शुड बी 0। हम जब मेथड ऑफ जॉइंट्स कर रहे थे तब क्या, तब हमारे पास 2 इक्वेशन थे, हम बस एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में फोर्स कंजर्व कर रहे थे, वहाँ पे मोमेंट का कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा था। बट इन दिस, सिंस दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज जैसे हम रिएक्शन फोर्स सॉल्व करने के टाइम पूरा बॉडी को लेके हम जैसे करते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखते हैं, वैसे ही हम एक सेक्शन काट के हम दोनों साइड का इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वही 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ से 3। सो एक एग्जांपल से समझ आएगा ये कैसे होता है। दिस देखो, इसको मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करना होगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत सारे जॉइंट को कंसीडर करना होगा। सो सपोज यू नीड सपोज तुम्हें बोल दिया क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में तो बोलेंगे नहीं कि सबको सॉल्व करो, सपोज बोल दिया कि दिस दिस एंड दिस, ये ए बी और सी मेंबर में ही बस तुम्हें फोर्स लेना है। सो इफ तो हम
ऐसे सेक्शन काटेंगे. सी यू कुड हैव कट अ सेक्शन लाइक दिस. ऐसे तुम सेक्शन काटते, ऐसे मतलब यू कैन कट एन इंक्लाइन. अच्छा ठीक है, ये डायग्राम से दिखाएंगे. हाँ, ये यू कट अ सेक्शन लाइक दिस. इसमें कितने मेंबर्स काट रहे हैं? एक, दो, तीन, चार. और एक सेक्शन ऐसे काट रहे हो, यहाँ पे तीन आ रहा है. सो फर्स्ट इज फॉरगेट द सेक्शंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द सपोर्ट रिएक्शंस. तो पहले सेक्शन भूल जाओ. और तो इधर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है एफ 5 किलो न्यूटन का. सो दिस इज अ हिंज, दिस विल गिव अ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट. सो एच विल बी 5 किलो न्यूटन. एंड R1 एंड R2 दोनों, R1 प्लस R2 शुड बी 5 + 10 + 10 + 10 + 5 दैट इज 40. एंड मोमेंट अबाउट जॉइंट वन, ये जॉइंट वन है, इसके अबाउट हम मोमेंट लेंगे. तो हमारे कितने कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं देखो. एक ये R2 का आ रहा है इस सेंस में, इन दिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस. तो R2 इंटू 18 इज वन इक्वेशन, इज वन साइड जो एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है. और बाकी जो सारे फोर्सेस है, ये सारे अप्लाइड लोड्स जो है, वो सारे कोइंसिडेंटली यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस पे ही दे रहा है. सो दिस 5 किलो न्यूटन विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3 मीटर. क्योंकि हम मोमेंट ऐसे निकलते हैं अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट देख रहे हैं, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ द फोर्स एंड दिस मेंबर. तो ये 3 मीटर है. सो 5 × 3. देन अब इस 5 पे आओ, इस 5 पे भी 3 हो रहा है, बट दिस इज दिस 3. इस 5 का एक्शन लाइन इज दिस. एंड इफ यू टेक अ ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, यहाँ पे 3 मीटर आ रहा है. सो 5 × 3 प्लस 10 × 6, क्योंकि ये 3.5 मीटर का बेस है, तो ये 6 होगा. ये 10 के साथ 9 मल्टीप्लाई होगा, इस 10 के साथ 12, और इस 5 के साथ 15. सो दिस इज हाउ द दिस एंड दीज आर ऑल इन द क्लॉकवाइज सेंस. ये सारे को तुम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट देखोगे, दे आर ऑल गिविंग क्लॉकवाइज मोमेंट्स. सो वी आर इक्वेटिंग द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट टू द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट. वी गेट R2 फ्रॉम हियर, और इस इक्वेशन से R1 भी आ गया. सो अब हम सपोर्ट रिएक्शन सॉल्व कर लिए हैं. सो नाउ वी गेट इनटू द सेक्शन कटिंग और इंटरनल फोर्स सॉल्व करना. विदाउट रिएक्शन फोर्स तुम कुछ भी नहीं कर सकते. इन एनी, ऑलमोस्ट इन एनी क्वेश्चन ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू सॉल्व द सपोर्ट रिएक्शन. और उसका मेथड भी कभी चेंज नहीं होता. दिस इज जस्ट कि तुम्हारे पास 3 इक्वेशन रहेगा ऑफ इक्विलिब्रियम, वो 3 को सॉल्व करना है ऑफ अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. देन हम सेक्शन x काट रहे हैं. सो सी देर आर 4 अननोन्स वी आर गेटिंग हियर. इधर ये एक फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स. इफ यू आर कटिंग इट, और उसका लेफ्ट साइड दिख रहे हैं. फर्स्ट व्हेन यू कट अ सेक्शन, उसका लेफ्ट साइड से आओ या राइट साइड से आओ, दैट इज अप टू यू. बट सपोज यू आर कंसिडरिंग द लेफ्ट साइड, तो इसके इंटरनल मेंबर्स का वी आर नॉट कंसिडर्ड अबाउट. बट दीज एरोज दैट दे आर पॉइंटिंग, दीज रिप्रेजेंट द फोर्सेज इन द 4 मेंबर्स जिसके थ्रू सेक्शन हमने काटा है. तो कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ LHS ऑफ सेक्शन XX एंड टेकिंग मोमेंट अबाउट जॉइंट 11. अब देखो जॉइंट 11 इज अ गुड ट्रिक टू यूज़ यहाँ पे, क्योंकि ये जॉइंट 11 है ना, हमने 4 मेंबर काटा है. उस 4 मेंबर में से 3 मेंबर ही जॉइंट 11 के थ्रू पास हो रहा है. सो इफ यू टेक मोमेंट अबाउट जॉइंट 11, देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, ये तीनों फोर्स का ही कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा. तो हमारे पास जो ये मेंबर है 3 और 4 को ज्वाइन करने वाला, सिर्फ उसी का कंट्रीब्यूशन रहेगा. क्योंकि वी हैव, व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस पार्ट, वी हैव 4 अननोन्स. 4 मेंबर हमने काटा है, मतलब हमारे पास 4 अननोन फोर्सेज है. अब उसमें से एक को तुम डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हो, सो ट्राई टू फाइंड अ पॉइंट. हमेशा देर मे नॉट बी पॉसिबल, बट अगर एक पॉइंट है जिसके थ्रू तीनों फोर्स ही पास हो रहे हैं, ऑल 3 फोर्सेज आर पासिंग थ्रू दिस, देन दिस फोर्स विल डायरेक्टली बी सॉल्व्ड. सो FC, ये हमारा FC है. दिस इज एक्टिंग एट 3 मीटर फ्रॉम जॉइंट 11. सो FC × 3 इस सेंस में आ रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में. और अब बाकी फोर्सेस देखो, बाकी फोर्स भी सारे देखना होगा. मतलब व्हेन यू आर कंसिडरिंग दिस पोर्शन, इस पोर्शन में जितने भी सपोर्ट रिएक्शन है, जितने भी एक्सटर्नली अप्लाइड लोड है, सारे को कंसिडर करना होगा. एंड इंक्लूडिंग द 4 प्लस द 4 मेंबर्स दैट यू हैव कट. तो यहाँ पे हम इसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं. तो FC × 3 मीटर्स. देन हमारे पास और क्या क्या है, वी हैव this force is also given in clockwise sense. So 5 × 3 फिर से आएगा, एक FC × 3 प्लस 5 × 3 प्लस जो रिएक्शन R1 है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रहा है. सो R1 × 6, यहाँ पे R1 लिखा है, लेकिन R1 वी हैव सॉल्व्ड. ओके, सो इट इज़ नॉट एन अननोन एनीमोर. और एक फोर्स, और ये H, बट एक H है दैट विल नॉट गिव एनी मोमेंट अबाउट 11, है ना. जॉइंट 11 से जितने भी मेंबर्स पास हो रहे हैं, दे विल नॉट हैव एनी मोमेंट कंट्रीब्यूशन अबाउट दैट जॉइंट 11. सो H ऑल्सो हैज नो कंट्रीब्यूशन. और एक ही फोर्स हमारा बचा है, दिस 5 इज गिविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिस 5 × 3, बिकॉज दिस इज 3. एंड हाँ, ये जो 4 है, 4
4 किलो न्यूटन यहाँ पे जो एक है, दिस विल ऑल्सो गिव हैव नो कंट्रीब्यूशन क्योंकि दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस. सो एफ सी इंटू दिस इज एन इक्वेशन हमें जो मिला आर वन का हमें वैल्यू पता है. सो दिस इज देयर इज ओनली वन अननोन. एफ सी हमारे यहाँ से आ गया, नेगेटिव आया है उसका मतलब वो कंप्रेशन है. और ये जो एफ ए है ये भी सॉल्व करने बोले थे, बट हमें तो पहले से हमने देखा है कि जीरो फोर्स मेंबर आइडेंटिफाई करने का तो यही मेथड है. जीरो कोलिनियर है, दिस इज नॉट कोलिनियर, सो एफ ए इज जीरो, वी नो दैट. तो अभी हमारा बस एफ बी बचा है. तो उसके लिए हम इस देखो हमने ये जो सेक्शन काटा है अभी हमारे इसमें 3 अननोन है. दिस अभी हमने ऐसे सेक्शन काटा था ना, तो दिस एंड दिस आर स्टिल अननोन्स और एक फोर्स हमारा आ गया है. तो हमने यहाँ पे और एक सेक्शन काटा है. दैट इज अप टू यू. तुम एक फोर्स निकालने के लिए कोई भी सेक्शन काट सकते हो. दैट इज अप टू यू. एंड देन द चॉइस ऑफ सेक्शंस कम्स विद प्रैक्टिस. जब तुम मतलब पहले तुम्हें लगेगा कि ऐसे ही सेक्शन क्यों काट रहे हैं, बट यू विल सी इवेंचुअली कि क्यों, उसका पीछे क्या लॉजिक है. So here they have cut this YY section. We say denote sections by putting the same letter on both side. ठीक है, तो इसको हम सेक्शन XX बोल रहे थे और इसको हम सेक्शन YY बोल रहे हैं. सो वी कट दिस. इधर हमारे पास 3 अननोन है, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स. और दिस एफ सी वी हैव ऑलरेडी सॉल्व. सो उसको एरो अंदर की तरह पॉइंट किया है टूवर्ड्स द जॉइंट बिकॉज वी हैड फाउंड आउट दैट इट वाज नेगेटिव, इट वाज अंडर कंप्रेशन. सो थीटा इज 45 डिग्री, वो तुम्हें ट्रस का ज्योमेट्री से मिल जाएगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो 3 मीटर, दिस इज ऑल्सो 3 मीटर. तो ये सारे एंगल्स 45 डिग्री है. अब हम इस वाई वाई का आर एच एस कंसिडर कर रहे हैं, उसका लेफ्ट पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं. तो उसमें हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखेंगे. तो दिस दिस एफ बी, देखो हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्यों यहाँ पे देख रहे हैं. वी कुड हैव टेकन एनी ऑफ द 3 इक्वेशंस दैट वी हैव, वी कुड हैव यूज्ड ऑल द 3 रिएक्शंस वी हैव, बट हमें वी विल ट्राई टू रिड्यूस द टाइम. वी आर मतलब जितने कैलकुलेशन कम कर सकते हो उतनी अच्छी है ना. तो वाई आर वी टेकिंग वर्टिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे at this point we have 2 unknowns. This force is unknown and this force is unknown, but this force is oriented horizontally. तो इसका वर्टिकल में कोई कंपोनेंट है नहीं, तो हम सीधा इधर वर्टिकल इक्विलिब्रियम देख लेंगे तो एक स्टेप में आ जाएगा इसका आंसर. सो एफ बी का cos 45 कंपोनेंट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. उसके साथ इसमें और क्या क्या है, नीचे की तरह 10 है और एक 10 है और एक 5 है. सो एफ बी cos 45 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5. एंड इधर वर्टिकल डायरेक्शन में और एक फोर्स है दैट इज R2, वो हम दूसरे साइड में इक्वल टू R2 कर रहे हैं. एंड देयर वर दिस फोर्स दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट एंड दिस फोर्स विच इज एन अननोन. ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, सो दे डोंट काउंट हियर. हाँ, तो हमारा एफ बी यहाँ से आ रहा है 20.833. सो दैट इज यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है. एफ बी 5.89 नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी कंप्रेशन में है. तो हमारे जो 3 फोर्सेस चाहिए थे वो मिल गया. एक तो एफ ए जीरो फोर्स मेंबर था, वो सीधा दिख रहा था, एंड द अदर 2 वी हैव सॉल्व्ड आउट, वो कंप्रेशन आया है. और यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमने बस अपार्ट फ्रॉम द सपोर्ट रिएक्शंस यहाँ पे हमने बस 2 इक्वेशन बेसिकली सॉल्व किया है. एक तो जीरो फोर्स मेंबर था, उसको छोड़ो. बट दिस फॉर बी एंड सी वी जस्ट चोज द सेक्शंस एंड इक्वेशंस इन सच अ वे कि बस एक एक इक्वेशन से ही हमारा आ रहा है. जबकि अगर हम मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज करते टू फाइंड सी एंड बी का फोर्सेस, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ पे 2 इक्वेशन करना पड़ता है, देन यहाँ पे 2 करना पड़ता है, देन यू वुड हैव नीडेड अ लॉट मोर. तो ऐसे बीच में से 2-3 मेंबर का बोल रहा है, तो मेथड ऑफ सेक्शंस इज ऑलवेज मोर एडवाइसेबल. एंड अगेन एग्जाम में जो क्वेश्चन देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन में बहुत रेयरली बोलेंगे कि सॉल्व द एंटायर ट्रस. तुम्हें ऐसे बीच से ही मेंबर देके बोलेंगे उसका फोर्स क्या है. सो मेथड ऑफ सेक्शंस इज अकॉर्डिंग टू मी मोर इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू स्टार्ट टू लर्न टू आइडेंटिफाई कि कैसा सेक्शन काटेंगे और कौन से इक्विलिब्रियम इक्वेशन चूज करेंगे. हम मोमेंट का करेंगे या एफ एक्स करेंगे या एफ वाई करेंगे टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इक्वेशंस दैट वी हैव टू सॉल्व. यहाँ पे उन्होंने मोमेंट लिया है, यहाँ पे उन्होंने वर्टिकल इक्विलिब्रियम लिया है, और ताकि एक ही इक्वेशन में आ जाए. Okay, so this is another example. इसमें सपोर्ट रिएक्शन सॉल्व करने के लिए हम एच ए प्लस ये एच एल आई है, आई गेस एच ए प्लस एच आई इक्वल टू 10. ये दोनों, क्योंकि दोनों ही हमने इस डायरेक्शन में माना है. एच ए प्लस एच आई इक्वल टू -10 एक इक्वेशन है. इसमें हम ले रहे हैं तो आर ए प्लस आर आई इज 0, क्योंकि इस पर अप्लाइड कोई वर्टिकल लोड नहीं है. और
एक हमारा ग्लोबल मोमेंट आ रहा है, मतलब वन इक्वेशन वी कैन गेट अबाउट आई, हम मोमेंट कंजर्व कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट हम ले देंगे तो कितने फोर्सेस आएंगे, एच ए विल नॉट कंट्रीब्यूट, एच ए एंड आर आई विल डेफिनेटली नॉट कंट्रीब्यूट, तो हमारे दो ही है, आर ए इंटू 16 जो क्लॉकवाइज सेंस में है, एंड 10 इंटू 6 वो भी क्लॉकवाइज सेंस में है, सो आर ए इंटू 16 प्लस 10 इंटू 6 इज 0। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि नॉर्मली वी हैव थ्री इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ रहा है, दिस इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस, कि इस पॉइंट के अबाउट तुम मोमेंट लोगे तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट किसी एक साइड से जीरो आना होगा, क्योंकि ट्रस में एवरी पॉइंट इज बेसिकली एन इंटरनल हिंज। हमने लास्ट क्लास में वीक 1 में वी हैव डिस्कस्ड इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज इज व्हाट इट इज बेसिकली, उसका डेफिनेशन क्या है कि उस पॉइंट में मोमेंट जीरो हो जाता है। सो इन अ ट्रस बेसिकली ऑल पॉइंट्स आर इंटरनल हिंज से ही कनेक्टेड है वो। तो इंटरनल हिंज में था कि किसी एक साइड से इन अ बीम एक इंटरनल हिंज है, तो उसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, वी टेक द मोमेंट आइदर ऑन इट्स लेफ्ट और ऑन इट्स राइट और उसको जीरो कर देते हैं। तो हियर वी आर टेकिंग सिग्मा एम एफ जीरो फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट से भी लेते तो सेम ही आंसर आता। So here uh, about this point we forget the right side, right side exist नहीं करता, अभी हम left side को देख रहे हैं, तो this 10 kilonewton will have no contribution क्योंकि उसका line of action F से पास हो रहा है ना, तो we have RA and HA's contribution, RA into 8 because F RA का लाइन ऑफ एक्शन ये है और F से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो दिस विल बी 8 मीटर। सो RA एक क्लॉकवाइज फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट देगा एंड HA विल गिव एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंड उसका डिस्टेंस 6 है, तो आर ए इंटू 8 माइनस एच ए इंटू 6 हमारा 0 है, एंड फ्रॉम हियर वी कैन सॉल्व एच ए एंड एच आई बोथ। सो बेसिकली चार अननोन्स थे और चार इक्वेशन आ गया, सो यू कैन सॉल्व देम, द हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस एंड द वर्टिकल रिएक्शंस। नाउ हम एक सेक्शन ले रहे हैं एक्स एक्स, सपोज ये दोनों फोर्स में जो भी मेंबर सॉल्व करना है यू हैव टू टेक द सेक्शन थ्रू दोज मेंबर्स, तो ऐसे हमने लिया है। अब इफ यू टेक अ सेक्शन लाइक दिस, ई एफ एक है, डी एफ एक है, ये दोनों हमारे अननोन्स, मतलब दोनों वी आर कटिंग दोज, सो दीज टू वी हैव टू मेंशन स्पेसिफिकली, मतलब इस फ्री बॉडी डायग्राम में देखो अगेन नोट, मतलब ये शुरू में परसीव करना डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज ऑल द मेंबर्स हैव सम इंटरनल फोर्सेस, बट ये सी में भी तो फोर्स था, बट एफ सी ई तो हमने मार्क यहाँ पे नहीं किया, दैट इज बिकॉज वी हैव नॉट कट दैट एंड इट इज एन इंटरनल फोर्स फॉर दिस पोर्शन ऑफ द ट्रस्ट। दीज फोर्सेज आर ऑल इंटरनल फोर्सेज, वो अंदर से कैंसिल हो जाएगा, इट विल नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम पे हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेज या मोमेंट्स कंसिडर करते हैं, बट सिंस वी हैव कट अ सेक्शन हियर, these members are no longer internal members, they act as external forces, मतलब एज इफ वो हम टेंशन, मतलब एज इफ इधर एक फोर्स ही एक्ट कर रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ दैट मेंबर। सो एफ ई एफ एंड एफ डी एफ यहाँ पे ले रहे हैं अवे फ्रॉम द बॉडी, वी आर जस्ट एज्यूमिंग टेंशन है, और इधर हमें दो सॉल्व करना है, सो वी नीड टू इक्वेशंस। सो हम एक एफ वाई को जीरो करेंगे, सो दिस इधर इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, सॉरी इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, इसका है, सो एफ डी एफ कॉस थीटा, ये थीटा so f df cos theta ऊपर की तरह in this direction, and this reaction we found out to be minus 3.75, so f df cos theta minus 3.75 is 0, इधर से f df हमारा आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, सो इट इज टेंसाइल फोर्स, ये इसी डायरेक्शन में होगा, एंड सॉरी दिस इसी डायरेक्शन में होगा, एंड एफ ई एफ के लिए वी विल टेक हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। सो इधर हमारे क्या क्या है, एफ ई एफ इज 1, 10 इज 1, सो एफ ई एफ प्लस 10 प्लस एच ए, यहाँ पे प्लस एच ए लिखे, बट एच ए का वैल्यू ही -5 है, तो यहाँ पे -5, और इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो भूल मत जाना, मतलब ऑलवेज, क्योंकि ये ट्रस्ट जैसे हम जब बीम सॉल्व कर रहे थे तब तब वी एनकाउंटर्ड ओनली हॉरिजन, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस हमें सिर्फ मिला था, बट यहाँ पे ट्रस्ट का मेंबर किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट हो सकता है ना, सो ऑलवेज रिमेंबर कि एन इंक्लाइंड मेंबर विल हैव अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अ वर्टिकल कंपोनेंट। सो एफ डी एफ sin theta will be the horizontal component, so this is the equation we are getting, FEF plus 10 minus 5 plus FDF into इसका जो cos theta का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था, and we get FEF as 10 kilonewton, वो compression है, तो हमें हमारे ये दो फोर्स आ गया।
these two forces we get. Similarly, अगर तुम्हें बोलता कि अगर दो कोई और force का बोलता, suppose this, if I told you to find out the member force of this member, so we could have cut a section like this, we could have cut a section like this. So that actually come, जब तुम्हारा एक मेंबर में फोर्स निकालने बोलेंगे, द सेक्शन यू कट हैज़ टू पास थ्रू दैट फोर्स, अदरवाइज तो वो इंटरनल फोर्स ही रह जाएगा और उसका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा फ्री बॉडी डायग्राम पे. बट समटाइम्स तुम देखोगे कि अ सेक्शन यू कट, उसमें से अगर 4 फोर्स पास हो रहा है, इफ़ यू कट अ सेक्शन दैट कट्स थ्रू फोर मेंबर्स, तो देख सकते हो कि इट इज़ पॉसिबल दैट इफ द थ्री ऑफ देम डोंट पास टू अ कॉमन पॉइंट, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, सो यू कुड हैव जस्ट टेकन द मोमेंट. ऐसे हो सकता है कि एक सेक्शन तुमने काटा एंड दैट इज नॉट सॉल्वेबल, क्योंकि हमारे पास बस 3 ही इक्वेशन है. इफ़ यू फाइंड आउट दैट देर आर 4 अननोन रिएक्शंस, इट इज़ पॉसिबल कि 4 फोर्स तुमसे वहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू ट्राई अ डिफरेंट सेक्शन. सेक्शंस कैन बी इंक्लाइंड, सेक्शंस कैन बी एनीथिंग, किसी भी मतलब ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, किसी भी तरह काट सकते हो. सो दिस कम्स विथ एक्सपीरियंस कि कैसे सेक्शंस काटना है जब तुम्हें कोई मेंबर को बोल दिया रहेगा. एंड आई थिंक असाइनमेंट में इसका प्रैक्टिस रहेगा, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. शुरू शुरू में दिक्कत हो सकता है. सो दैट इज़ ऑल. और कोई क्वेश्चन है किसी का? Okay, so if there is no question, or is there any other doubt or anything? Okay, then we can end the class now. Okay. We'll meet again the same time next Tuesday. The next topic is a principle of virtual work, so वो एक नया टॉपिक होगा, बट ठीक है, वो week 3 का है. I'm ending the call then. See you next week.